वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सऊदी अरब में माह रमजान का आगाज, हरम शरीफ में नमाज तरावी के रूह परवर मनाज़िर, लाखों ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। कल देर रात गए पाकिस्तान रुयत हिलाल कमेटी ने भी माह रमजान का चांद देखने का किया ऐलान। आज पाकिस्तानी शहरियों ने रखा है पहला रोजा। ब्रिटेन के शहर बर्मिंघम में पेश आया इंतहाई अफसोसनाक वाकया। मस्जिद से घर वापस जाते हुए एक शख्स को एक जुनूनी शख्स ने लगा दी आग। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने फेक न्यूज को लेकर किया खबरदार। कहा, फेक न्यूज मुख्तलिफ तबकों के दरमियान पैदा कर सकती है कशीदगी। मीडिया ट्रायल पर भी उन्होंने उठाए सवाल। साल 2019 के मोदी सरनेम वाले चोर हैं, इस बयान को लेकर राहुल गांधी ठहराए गए कसूरवार। सूरत कोर्ट ने सुनाई 2 साल कैद की सजा। और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना हुकूमत के कंटी वेलुगु प्रोग्राम की तारीफ की। दिल्ली और पंजाब में इस तरह की स्कीम शुरू करने का दिया इशारा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब में माह रमजान का आगाज हो गया है। हर तरफ रूह परवर मनाजिर देखे जा रहे हैं। इस दरमियान मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाखों मुसलमानों ने रमजान की पहली शब इशा और तरावी की नमाजें बाजमात अदा की हैं। सऊदी खबर रसाई इदारे के मुताबिक मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में गुज़िश्ता रात लाखों मुकामी शहरी, मुकीम, गैर मुल्की और दुनिया भर से आए हुए उम्रा ज़ायरीन ने इशा और तरावी अदा की। मस्जिद हरम में इमाम व खतीब शेख डॉक्टर यासिर अल दोसरी और हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने तरावी पढ़ाई। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के इस्तकबाल की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी थी, जबकि ऑपरेशनल प्लान पर अमल दरामद के लिए कारकुनान और उनकी निगरानी के लिए सुपरवाइज़र तैनात किए गए हैं।
پاکستان میں ماہ رمضان کی شروعات ہو گئی ہے اور یہاں آج پہلا روزہ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور جمعرات کو پہلا روزہ ہے۔ اس بات کا اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالقبیر آزاد نے بدھ کی رات پشاور میں پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کمیٹی کا اجلاس پشاور کی مرکزی عیدگاہ میں ہوا۔ زونل اور ضلعی رؤیت ہلال کمیٹیوں کے الگ الگ اجلاس بھی صوبائی دارالحکومتوں اور ضلعی صدر مقامات میں منعقد ہوئے۔ برطانیہ کے شہر برمنگھم میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ برمنگھم کی مسجد سے گھر واپس جاتے ہوئے نامعلوم شخص نے ایک بزرگ کو آگ لگا دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مسجد سے گھر واپس جانے والے شخص کو ایک نامعلوم شخص نے روکا اور دونوں کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی، جس کے بعد ملزم نے اس شخص کو کچھ چھڑک کر آگ لگا دی۔ پولیس کے مطابق ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس سے تفتیش جاری ہے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، جبکہ پولیس نے بھی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ جلائے جانے والے شخص کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ وہیں پولیس اس بات کا بھی جائزہ لے رہی ہے کہ کیا پچھلے مہینے ویسٹرن لندن میں ہونے والے اسی طرح کے حملے میں ایک 82 سالہ شخص کو مسجد کے باہر آگ لگا دی گئی تھی، اس واقعے سے اس واقعے کا کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ You speak with me, I will speak with him. Let me pray and then I'll go with you anyway. Sorry. You I want to pray, man. know, My time pray. mais c'est te que tout là pour me c'est que tu It's my time pray. Yeah, I'm not fighting. So why you do this? I'm not fighting. I'm not fighting. Yeah, I know. So you don't have to. عالمی برادری کے شدید دباؤ کے سامنے اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کے ملک کا شمالی مقبوضہ مغربی کنارے میں خالی کرائی گئی بستیوں کی تعمیر نو اور دوبارہ آباد کاری کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں اسرائیلی پارلیمنٹ میں سن 2005 کے چند یہودی بستیوں کو خالی کرانے سے متعلق ترمیمی بل پر رائے شماری کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیلی کنسیٹ میں ہونے والی رائے شماری پر واشنگٹن کی تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر تازہ ڈرون حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں 3 افراد کے ہلاک اور 7 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایمرجنسی سروس نے بتایا کہ 3 افراد ہلاک، 2 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایک کو ریسکیو کیا گیا۔ 4 افراد ملبے تلے دبے ہیں۔ کیف کے جنوب میں واقع ہائی اسکول پر یہ ڈرون حملہ ہوا ہے۔ طلبہ کے رہائشی یونٹس کی 2 منزلیں جزوی طور پر تباہ ہو گئیں۔ تعلیمی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے والی ایک عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ ایمرجنسی سروسز کے مطابق صبح 7 بجے کے قریب 300 اسکوائر میٹر پر پھیلی آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ امریکی پولیس کے تشدد کے نتیجے میں ایک اور سیاہ فام امریکی جوان شہری کی موت ہو گئی ہے، جس کے بعد امریکہ بھر میں پھر ایک مرتبہ شدید احتجاج کا سلسلہ شروع ہونے کا اندیشہ ہے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق سی سی ٹی وی کیمرے کی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ کینیا نژاد یہ 28 سالہ جوان شہری نفسیاتی مسائل سے دوچار ایک بحرانی دور گزارنے کے بعد 6 مارچ کو ورجینیا کے شہر ہینریکو میں امریکی پولیس اور اسپتال کے عملے کی زیادتی اور تشدد کے نتیجے میں دم توڑ گیا۔ اس سیاہ فام شہری کو امریکی پولیس کے 10 اہلکاروں نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور نہایت وحشیانہ طریقے سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ امریکہ میں نسلی امتیاز اور سیاہ فام شہریوں پر تشدد کی پوری ایک تاریخ بنتی جا رہی ہے اور نفرت انگیزی کا یہ عمل امریکی سماج میں بحران کا باعث بنا ہوا ہے۔ فرانس میں حکومت مخالف مظاہرے شدید سے شدید تر ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی پولیس نے جنوبی شہر فوس سورمر کی آئل ریفائنری میں مظاہرہ کرنے والے لوگوں پر اشک آور گیس کا استعمال کیا اور انہیں زد و کوب بھی کیا۔ دوسری جانب فرانسیسی ہوم منسٹر نے کہا کہ ملک گیر مظاہروں کے نئے دور میں حکومت نے 12,000 پولیس اہلکاروں کو پورے ملک میں تعینات کیا ہے۔ فرانسیسی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے قانون میں اصلاحات کے خلاف
मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों की तादाद 850 से ज़्यादा हो गई है। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला जेराल्ड दारमेनन ने अपने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता जुमेरात से अब तक 855 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। डिजिटल दौर में फेक न्यूज़ मुख्तलिफ तबकों यानी मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान कशीदगी पैदा कर सकती हैं। ये कहना है हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का, जो रामनाथ गोयनका अवार्ड तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ से जमहूरी इक़्तिदार के लिए भी ख़तरा पैदा हो सकता है। मीडिया ट्रायल या मीडिया डिबेट के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मीडिया ने मुलजिम को अदालत का फैसला आने से पहले ही अवाम की नज़रों में मुजरिम के तौर पर पेश कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हर इदारा चैलेंज का सामना कर रहा है और सहाफ़त का अपना ही चैलेंज है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मौजूदा समाज में फेक न्यूज़ प्रेस की आज़ादी और गैर जानिबदारी के लिए संगीन खतरा है। It is tried to say is the fourth pillar in the conception of the state and thus an integral component of our democracy. A functional and healthy democracy must encourage the development of journalism as an institution that can ask difficult questions to the establishment, as it is commonly known, speak truth to power. The vibrancy of any democracy is compromised when the press is prevented from doing exactly this. The press must remain free if a country is to remain a democracy. And we are no exception. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को चोर कहने के मामले में सूरत कोर्ट ने जुमेरात को समाअत के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को कसूरवार करार दिया है। अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है। हालांकि बाद में राहुल गांधी को अदालत से जमानत भी मिल गई। बता दें कि ये केस साल 2019 का है, जब वायनाड से MP राहुल गांधी ने जनरल इलेक्शन से पहले कर्नाटक के कोलार में मुनक्कदा अवामी जलसे में PM के सर ने मोदी को लेकर रिमार्क किया था, जिसके बाद उन पर हतक इज्जत का केस दर्ज हुआ था। राहुल गांधी ने मुबैना तौर पर कहा था कि क्यों सभी चोरों का सरनेम एक जैसा मोदी होता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दारुल हुकूमत में बीजेपी के साथ पोस्टर वार पर कहा कि PM मोदी इतने डरे हुए क्यों हैं? मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर ही तो लगाए थे। बात है, जनतंत्र है, जनतंत्र के अंदर तो लगता है ऐसे सबको अधिकार है। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा है अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ, लगाएं। आपको इसका मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आया कि कल उतने बेचारे एक प्रिंटर को पकड़ लिया, 6 गरीब वो पोस्टर चिपकाने वाले थे उनको अरेस्ट कर लिया। ये क्या है? ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह से
ये दिखाता है कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए क्यों हैं। एक छोटे से 4 लोग अगर पोस्टर चिपका देते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या फर्क पड़ गया, लगा लेंगे। इसमें मतलब मोदी जी अगर एक प्रिंटर और 6 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ रहे हैं, इतने महान देश का इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री 4 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ेगा, शोभा नहीं देता। इस दौरान दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ्री आई टेस्टिंग या फ्री आई चेकअप स्कीम कंटी वेलुगु की भरपूर अंदाज में सताइश की और कहा कि दिल्ली और पंजाब में भी इसे शुरू करने का इरादा है। जैसे मैं केसीआर साहब के यहाँ गया था हैदराबाद, वहां पे उन्होंने हमें एक आई कैंप देखने के लिए बुलाया। तेलंगाना की कितनी 3 करोड़ या 4 करोड़ जनसंख्या है, वो सबका आई टेस्ट फ्री में करा रहे हैं, सबका। तो उन्होंने उसकी पूरी प्लानिंग की हुई थी। किसी को भी चश्मा चाहिए फ्री में चश्मा दे रहे हैं, किसी को आंख का ऑपरेशन करा रहा है फ्री में। तो एक तरह से 4 करोड़ या 3 करोड़ जनसंख्या की आंखें दुरुस्त करने का इतना बड़ा मैसेज, तो ये तो सीखना चाहिए। वहीं मैं अनाउंस करके आया कि मैं दिल्ली में भी करूंगा, मान साहब ने कहा मैं पंजाब में भी करूंगा। तो एक दूसरे हम सीख क्यों नहीं सकते। उन्होंने इरिगेशन का इतना शानदार काम किया हुआ है, तेलंगाना के अंदर इरिगेशन पे इतना शानदार काम हुआ है, उसको देखने के लिए स्पेशली भगवंत मान दोबारा गए अभी थोड़े दिन पहले। तो हम एक दूसरे से सीख क्यों नहीं सकते। सीखने के लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए ये गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म है। दिस इज नो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कांग्रेस तर्जुमान गौरव वल्लभ ने दावा किया कि क्रूड ऑयल यानी खाम तेल की कीमतों में जो कमी हुई है उसके मुताबिक अवाम को अब पेट्रोल 16 ता 17 रुपए सस्ता मिलना चाहिए। मई 2022 में लास्ट दफा तेल की कीमतों में केंद्र सरकार ने बदलाव किया था, मई 2022, और एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 21 मई 2022। उससे लेकर आज तक 305 दिन बीत चुके हैं। मई 2022 में कच्चे तेल की कीमत थी $109.5 प्रति बैरल। ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के वेबसाइट से निकाला हुआ आंकड़ा है। और मार्च 20 मतलब परसों कच्चे तेल जो भारत खरीद रहा है उसकी कीमत हो जाती $70.69 प्रति बैरल। अगर हम इसको बैरल और डॉलर को रुपये और बैरल को लीटर में कन्वर्ट कर दें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मई 2022 में भारत सरकार कच्चा तेल ₹53.45 प्रति लीटर में खरीद रही थी। यह भी सरकारी आंकड़ा है। और मार्च में भारत सरकार कच्चा तेल ₹36.68 प्रति लीटर में खरीद रही है। हम ये कह ही नहीं रहे सरकार से ये अगर उम्मीद करें कि वो एक्साइज ड्यूटी कम कर देगी, मोदी सरकार में वो संवेदना है ही नहीं। पर जो घटत हुई है ₹16.75 प्रति लीटर की, देयर इज ए रिडक्शन ऑफ ₹16.75 पर लीटर। और हम ये नहीं कह रहे मोदी जी कि आप एक्साइज ड्यूटी को कम करो, हम कह रहे हैं जो कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 305 दिनों में ₹16.75 प्रति लीटर की कमी हुई है, वो देश के लोगों को क्यों नहीं मिल रही है। यही इसी मुद्दे पर हम आज प्रेस वार्ता करने आए हैं। अगर कच्चे तेल की कीमतों का फायदा देशवासियों को मिल जाए तो आज रात 12 बजे से ₹16.75 प्रति लीटर पेट्रोल और ₹16.75 प्रति लीटर डीजल में कमी आ जाए। एक्साइज ड्यूटी का जो लूट चालू है वो चालू रखने के बावजूद उसमें कमी की उम्मीद नहीं कर रहे मोदी जी, हमें पता है वो नहीं करोगे आप। पर ये कच्चे तेल जो आपको फायदा मिल रहा है वो देशवासियों को क्यों नहीं दे रहे। ये कैसी पार्टनरशिप आपने देश के लोगों के साथ मोदी जी खोली है जहां पे प्रॉफिट आपका और जब लॉस हो जाए तो वो लॉस देशवासियों का। ये कैसी आपने पार्टनरशिप फर्म खोल दी लोगों के साथ। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब में माह रमजान का आगाज, हरम शरीफ में नमाज तरावी के रूह परवर मनाज़िर, लाखों ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। कल देर रात गए पाकिस्तान रुयत हिलाल कमेटी ने भी माह रमजान का चांद देखने का किया ऐलान। आज पाकिस्तानी शहरियों ने रखा है पहला रोजा।
ब्रिटेन के शहर बर्मिंघम में पेश आया इंतहाई अफसोसनाक वाकया। मस्जिद से घर वापस जाते हुए एक शख्स को एक जुनूनी शख्स ने लगा दी आग। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने फेक न्यूज को लेकर किया खबरदार। कहा, फेक न्यूज मुख्तलिफ तबकों के दरमियान पैदा कर सकती है कशीदगी। मीडिया ट्रायल पर भी उन्होंने उठाए सवाल। साल 2019 के मोदी सरनेम वाले चोर हैं, इस बयान को लेकर राहुल गांधी ठहराए गए कसूरवार। सूरत कोर्ट ने सुनाई 2 साल कैद की सजा। और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना हुकूमत के कंटी वेलुगु प्रोग्राम की तारीफ की। दिल्ली और पंजाब में इस तरह की स्कीम शुरू करने का दिया इशारा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।